So, welcome to all of you who have graced this poetic gathering with your presence. I'll just say a couple of words. Having a mushaira to conclude a conference is a very apt thing for a conference being conducted in Lucknow. And I am very grateful to Professor Gitanjali for having suggested this idea. And having suggested the idea, I am doubly grateful to her for having given me carte blanche as to who are the poets who will be invited. And I am very happy to share a small coincidence with you. You all know that the Indian Society of Evolutionary Biologists was founded and registered in the year 2018. I was one of the founding members. Another society was registered in 2018. It's called the Navisht Literary Society, and these gentlemen and me are the founding members of that Navisht Literary Society. So our society and ISEB are exactly the same age in years. So it's my great pleasure to introduce today's poets. First I will introduce the Sadr Mehfil, who will preside over the Mehfil. Janab Sayyid Hussain Taj Rizvi Taj Sahab. He was born in Muzaffarpur in Bihar but lives in Lucknow. He is from a very, very distinguished family of Urdu poets. Both his father Murtaza Azhar Rizvi Sahab and grandfather Ijtaba Rizvi Sahab were noted Urdu poets and literateurs. So it's my great pleasure and privilege to invite him to kindly come on the dais. I will next call upon Afif Siraj Bhai. He is actually the younger brother of Taj Bhai, and he was born in Darbhanga, presently lives in Patna. He is a very interesting person also. He makes movies, he writes poetry, and he has recently initiated a very interesting YouTube channel called Radio Urdu, aimed at pulling in younger audiences towards Urdu poetry. Afif bhai, please come to the dais. I should add that Afif bhai का एक मरसियों का मजमुआ शाया हुआ है. There is a publication of a collection of elegies or marsiyas by Afif bhai. Third, let me call upon Shri Bharatdeep Mathur Deep from Agra. He is from Agra and lives in Agra. He has a published book of Urdu verse called Kahan Chale Aaye. His work appears in many collections of Urdu poetry. More than 30 books feature his poems. And apart from writing poetry in Urdu and reciting it in a uniquely batarannum or musical way, he also writes poetry in Braj Bhasha, which is the old language of the Agra region. And I have specifically requested him, he has very kindly agreed to also recite at least one composition in Braj. Bharatdeep bhai, please come to the dais. And finally we have a very dear friend of mine, Babar Imam Babar. He is from Patna, lives in Patna. He has a very interesting background which stretches all the way from information technology to horticulture and apiculture and touches everything else in between. He is one of the most widely read people I know, and he is a well renowned expert on Ghalib's poetry and has done a lot in the internet era to bring Ghalib's poetry through forums, through discussions, through social media to the public, and he is always addressing people's questions, what is the exact meaning of this line in that ghazal, and he would write 20-page responses to such things. Very recently, last year, his poetry collection Farebe Rangobu was published. So he is also Sahib-e-Kitab, and it's my very great pleasure and privilege to invite Babar Imam Sahib. Please come on the dais. As I mentioned, इस महफिल की सिदारत हुसैन ताज रिजवी साहब कर रहे हैं. So he is presiding, and I would request Afif Siraj Bhai to take over the actual comparing of the महफिल. Afif Bhai, अब आपके हाथों में है सारा मामला.
हाज़रीन आदाब अर्ज़ है। ये हम पर जुल्म है कि आप पर जुल्म है, ये तो वक्त तय करेगा, इसलिए कि यहाँ साइंटिफिक फ्रैटर्निटी बैठी हुई है और एक बड़ा सानेहा ये है कि दुनिया में बहुत तरह के स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है जो अलग अलग चीज़ों से डील करती है। We the poets and you the scientists are pole apart. You agree on those things which can be identified, which can be tangible, which is logically correct, for which you have a theory or an idea, and we disagree with all those things. So this is a great problem between us and you people. ऐसे में आपको खुश कर देना यह हमारा इम्तिहान है और आपका हमको खुश कर देना आपका इम्तिहान है। अब ये देखें कि हम दोनों पास होते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा अर्ज किया, आई वाज सेइंग कि पोइट्री इज all about nonsense things which does not make sense, and you people are sensible people who make sense of everything. But there is, I feel that there is a similarity between every subject is the aesthetic value of the subject, the aesthetic value of anything which exists. So I can say that there is a poetry in science as well, and there is a science of poetry as well. So आपको अगर जहमत ना हो तो कुछ ऐसी बातें आपके दरमियान पेश करें कि what is poetry actually? हम लोगों का मानना यह है, ये जो हमारा पैनल बैठा हुआ है, वी पीपल कीप डिस्कसिंग अबाउट पोएट्री, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, व्हाट शुड बी देयर इन पोएट्री, व्हाट शुड नॉट बी देयर इन पोएट्री। तो हम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। बट एक चीज़ जो हम लोगों ने, हमारे बड़े भाई ताज साहब बैठे हैं, व्हेन आई वाज in my very beginning early days when I was writing a poetry, he told me one thing, the basic thing of a poetry, that if it does not touch your heart, it is not a poetry. So this was Guru Mantra by my Guru Taj Rizvi Sahab. And when poetry is a lyrical expression of words. We put words in a way that it creates a lyric, and when music blends with that lyric, it becomes a mesmerizing thing, it becomes a jadoo. So Agra is a place, so many of us may have visited Agra, और जब हमने आगरा का ताजमहल देखा होगा, हालांकि हकीकत ये है कि हमने अपनी बेगम साहिबा से वादा किया था कि जब तक तुम साथ नहीं होगी हम ताजमहल नहीं देखेंगे, और इस वजह से अब तक हम नहीं देख पाए हैं। मगर जिसने देखा है उनका कहना यह है कि जब ताजमहल के सामने हम पहुंचते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये असर, ये मैजिक आगरा की हवा में है। तो आगरा से चलने वाली एक हवा हमारे शहर में भी आई है, लखनऊ में भी आई है, जिसका नाम भरतदीप माथुर है। आप यकीन जानिए कि आप सिर्फ अपने सेंसेस को खोल के रखिए, लफ्ज़ों को मत सोचिएगा, सिर्फ आवाज़ें सुनिएगा,
लय सुनिएगा और खो जाइएगा। मैं बहुत अदब व एहतराम से जनाब भरतदीप माथुर साहब से गुजारिश हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया हफीज़ भाई। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अमिताभ जोशी सर का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने की दावत दी, और बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं कुछ शेर, कुछ गज़लें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सदर साहब की इजाज़त। कहा कि नुमाइंदा हूँ शहर आगरा का, नुमाइंदा हूँ शहर आगरा का, मोहब्बत लेके लखनऊ आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे सुनिए कि कहा कहाँ तामीर करनी है, किसे मिस्मार करना है। कहाँ तामीर करनी है, किसे मिस्मार करना है, पता है हमको कैसे रास्ता हमवार करना है। कहाँ तामीर करनी है, किसे मिस्मार करना है, पता है हमको कैसे रास्ता हमवार करना है। और तुम्हारे शहर में ईमा की लगभग क्या खपत होगी, तुम्हारे शहर में ईमा की लगभग क्या खपत होगी, तुम्हारे शहर में हमको ये कारोबार करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 लाइनर्स और एक हाजिर करता हूं। बहुत शुक्रिया फिर भाई। कहा कि कौन कहता है कि है कागज कलम पर मुनहसिर, मुनहसिर मीन्स डिपेंड। कौन कहता है कि है कागज कलम पर मुनहसिर, है मेरा शेरो सुखन रंजो अलम पर मुनहसिर। कौन कहता है कि है कागज कलम पर मुनहसिर, है मेरा शेरो सुखन रंजो अलम पर मुनहसिर। और एक जरिया ही बचा है देखने का आपको, एक जरिया ही बचा है देखने का आपको, और वो भी नींद के रहमो करम पर मुनहसिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल पेश करता हूं। मैंने गजल को डिफाइन करने की कोशिश की है गजल के अंदर कि गजल क्या है। कहा कि अगर अंधेरों को रोशनी से सजा रहे हो तो यह गजल है। अगर अंधेरों को रोशनी से सजा रहे हो तो यह गजल है। अगर उजालों से नूर लेकर लुटा रहे हो तो यह गजल है। बहुत शुक्रिया। अगर अंधेरों को रोशनी से सजा रहे हो तो यह गजल है। अगर उजालों से नूर लेकर लुटा रहे हो तो यह गजल है। और भटक रहे हैं खामोशियों के तवील सहरा में जो मुसाफिर, भटक रहे हैं खामोशियों के तवील सहरा में जो मुसाफिर, तुम उनको मंजिल का सहल रास्ता बता रहे हो तो यह गजल है। बहुत शुक्रिया। और फलक की ऊंचाइयों से डर के जो अपनी हिम्मत गवा चुके हैं, फलक की ऊंचाइयों से डर के जो अपनी हिम्मत गवा चुके हैं, तुम उन परिंदों को फिर से उड़ना सिखा रहे हो तो यह गजल है। बहुत शुक्रिया। और हवा में उड़कर जो एक दुपट्टा तुम्हारे चेहरे पे आ गया था, एक गजल का शेर, खालिस गजल का शेर, कि हवा में उड़कर जो एक दुपट्टा तुम्हारे चेहरे पे आ गया था, तुम उस दुपट्टे पे सुर्ख बूटे बना रहे हो तो यह गजल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हवा में उड़ के जो एक दुपट्टा तुम्हारे चेहरे पे आ गया था, तुम उस दुपट्टे पे सुर्ख बूटे बना रहे हो तो यह गजल है। और तरक्कियों की नजर हुए हैं तमाम बेबस शजर बेचारे, शजर पेड़ को कहते हैं, कि तरक्कियों की नजर हुए हैं तमाम बेबस शजर बेचारे, तुम उनकी शाखों से अगर खिलौने बना रहे हो तो यह गजल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर आखिर कि यकीन मानो कि बहर में बस कलाम करना गजल नहीं है। यकीन मानो
कि बहर में बस कलाम करना गजल नहीं है, अगर सलीके से शेरियत भी निभा रहे हो तो ये गजल है। बहुत शुक्रिया। और इजाजत हो तो कुछ तरन्नुम में मैं हाजिर कर दूंगा, कुछ अशार में तरन्नुम में पेश करना, सुनिएगा। कहा कि कुछ ज़माने से सवालात करूं या न करूं, कुछ ज़माने से सवालात करूं या न करूं, अपना इज़हार ख़यालात करूं या न करूं, अपना इज़हार ख़यालात करूं या न करूं, कुछ ज़माने से मैं जो बोला तो जरा तल्ख भी हो सकता हूँ, मैं जो बोला तो जरा तल्ख भी हो सकता हूँ, मुझको बतलाए कि फिर बात करूं या न करूं, मुझको बतलाए कि फिर बात करूं या न करूं, कुछ ज़माने से। शेर यूं कि कश्मकश है कि मैं मासूम परिंदों पे अभी, कश्मकश है कि मैं मासूम परिंदों पे अभी, ज़ाहिरा गर्दिशे हालात करूं या न करूं, ज़ाहिरा गर्दिशे हालात करूं या न करूं, कुछ ज़माने से। झांक आया हूँ कई खौफ ज़दा आँखों में, झांक आया हूँ कई खौफ ज़दा आँखों में, और डरता हूँ शिकायत करूं या न करूं, और डरता हूँ शिकायत करूं या न करूं, कुछ ज़माने से। और ये शेर भी देखें कि टूट सकता है जो दोनों का भरम कायम है, टूट सकता है जो दोनों का भरम कायम है, जिंदगी तुझसे मुलाकात करूं या न करूं, जिंदगी तुझसे मुलाकात करूं या न करूं, कुछ ज़माने से। और ये जी मैं ज़रूर हाजिर करता हूँ कि टूट सकता है जो दोनों का भरम कायम है, जिंदगी तुझसे मुलाकात करूं या न करूं, कुछ ज़माने से। और आखिरी शेर कि इतने आंसू की खुदा पूछ रहा है मुझसे,
इतने आंसू कि खुदा पूछ रहा है मुझसे, अब तेरे शहर में बरसात करूं या न करूं, अब तेरे शहर में बरसात करूं या न करूं कुछ ज़माने से। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। और जैसा कि हुक्म हुआ अमिताभ सर का, एक ब्रज की होली मैं आपको सुनाई देता हूं। आगे है इजाजत। कहा कि ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, कान्हा के संग खेलन होरी, कान्हा के संग खेलन होरी, उमर पड़ी है भीड़, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर। ढूंढ रहे हैं व्याकुल नैना, ढूंढ रहे हैं व्याकुल नैना, देख सूरतिया पावे चैना, देख सूरतिया पावे चैना, मनवा भया धीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर। देखत शाम सूरतिया प्यारी, जब शाम को देख लिया कि देखत शाम सूरतिया प्यारी, गोप गोपी सुध बुध सब हारी, भूल गए सब पीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में कि देखत शाम सूरतिया प्यारी, गोप गोपी सुध बुध सब हारी, भूल गए सब पीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर। और आखिरी बंद इसका कि रची रची मोहन रंग लगाए, रची रची मोहन रंग लगाए, होरी दिव्य छटा बिखराए, यमुना जी के तीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर, ब्रज में उड़त गुलाल अबीर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जैसा हुक्म हुआ, एक गजल और सुन लीजिए साहब। इसका मतलब जो है, उसमें एक लफ्ज है गुलपारे, गुलपारे मीन्स फ्लावर पेटल्स। सुनिए कि बिखरा दे लाखों गुलपारे दरिया में, बिखरा दे लाखों गुलपारे दरिया में, नेकी कल डाल दे प्यारे
दरिया में बिखरा दे लाखों गुल पारे, दरिया में नेकी कर डाल दे प्यारे, दरिया में दूर तलक बस गंदला गंदला पानी है, दूर तलक बस गंदला गंदला पानी है। कैसे कोई अक्स निहारे दरिया में, कैसे कोई अक्स निहारे दरिया में, नेकी कर डाल दे प्यारे, दरिया में। मैं दरिया में उतरा, दरिया उतर गया, मैं दरिया में उतरा, दरिया उतर गया। हैरान हूँ मैं हाथ पसारे दरिया में, हैरान हूँ मैं हाथ पसारे दरिया में, नेकी कर डाल दे प्यारे, दरिया में। और दोस्तों, हम जो कवि और शायर लोग होते हैं, हम लोग लफ्ज़ों से, अल्फाज से, शब्दों से चित्र बनाते हैं। तो एक चित्र बनाने की कोशिश की, एक तस्वीर कशी की कोशिश की है। देखिए कहाँ तक कोशिश कामयाब हो पाई। कहा कि छाए हैं नफरत के बादल अंबर पर, छाए हैं नफरत के बादल अंबर पर, कैसे उतरे चांद सितारे दरिया में, कैसे उतरे चांद सितारे दरिया में, नेकी कर डाल दे प्यारे, दरिया में। और धीरे धीरे सब दरिया हो जाते हैं। यहाँ जितने भी यंगर्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से ये शेर सीरियस को डेडिकेट कर रहा हूं कि धीरे धीरे सब दरिया हो जाते हैं, मिलते हैं जितने भी धारे दरिया में, मिलते हैं जितने भी धारे दरिया में, नेकी कर डाल दे प्यारे, दरिया में बिखरा दे लाखों गुल पारे, दरिया में नेकी कर डाल दे प्यारे, दरिया में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।